गाइस आज हमारे साथ वैभव है एंड वैभव एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं। तो वैभव अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो? Hi guys, my name is Vaibhav. मैं एक data analyst की तरह work कर रहा हूँ. I stay in Mumbai. Mostly my job role involves like working with SQL, Excel and Power BI. तो मुझे अच्छा लगता है कि to turn raw data into meaningful insights and continuously working on my analytics skills. सो वैभव आपको इन टोटल कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है इस रोल पे? In as a data analyst, 1.5 years. 1.5 year. And in total, In total, for 3 years. before this 1.5 year, what you are doing? So my pass out year was in May 22. After that, I joined as a associate SaaS consultant, and I worked एट दैट पोजीशन फॉर अराउंड 1.5 year. उसके बाद मुझे अपने स्किल्स थोड़े अपस्किल्स करने थे, थोड़े ज्यादा कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखना था. So which is why I started learning Python, SQL and ML and all those things, and slowly I transitioned into this data analyst role. तो वैभव बाय द वे आपने ये साइंस कहाँ से सीखा था? Of course, from Shubham sir. Initial stage पे, like, he helped us a lot because being from actually my background is from mechanical, so of course mechanical students ज्यादा इतने IT related IT को थोड़ा बहुत डरते ही है because we don't know how to enter into it, get into it, because it's all coding and all. That's what we all think initially, right? So but SAS is something which user friendly language, easy to go. मुझे शुभम सर ने सिखाया था तभी. One more question, Vaibhav, that there हम्म. might be many institute or many trainers who will be training for this role. So how you decided कि मुझे इस इंस्टीट्यूट या इस पर्टिकुलर पर्सन से ही लेना चाहिए, like long back? Actually, at that time, because I started learning SAS from like last 3.5 years ago. At that time, I think like SAS का awareness इतना नहीं था, because जितना मैंने रिसर्च किया था थ्रू यूट्यूब और थ्रू एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, मुझे सैस के बारे में इतना पता नहीं था. मुझे पहले एसएपी करना था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि सैस होता भी क्या है. एसएपी के थ्रू मैं आपके चैनल को इंट्रोड्यूस हुआ, एंड आफ्टर दैट लेटर ऑन एक्सप्लोर दैट सैस इज ऑल्सो देयर, विच साउंड्स मोर गुड देन एसएपी अकॉर्डिंग टू मी. मुझे तब वैसे लगा था. सिंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी, यू हैव दैट real experience on that technology. So I felt like why not, because since you are also from mechanical background, I was also from mechanical background. Vaibhav, earlier you were working as a SaaS consultant. Would you like to Mhm. reveal the company name? To be very honest, no, actually, because there are some policies which I don't want to break. But yeah, it was a consulting services. I can tell you about that. And I used to work from one of the insurance client. It was a very big insurance company, so I used to work for them. And how did you decided, Vaibhav, कि now Mhm. working with SaaS in an insurance company, you should move to full-fledged data analyst and learn some more tools? Like, what made you to decide this? Initially जब मैं जॉब पे था स्टार्टिंग पे, so there were like lot of things which I was not able to understand, because they hired me from that perspective. One of my senior, she was about to leave in 3 months, and whatever she used to work on, वो मुझे केटी देने वाली थी उस सब चीज का, एज अ नॉलेज ट्रांसफर. सिंस इट वाज अ वेरी न्यू, मुझे लैंड वैन का मीनिंग नहीं पता था क्या होता है, एंड लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डोंट नो. आउटलुक भी मुझे पता नहीं था कैसे यूज करते. सो दैट वाज माय स्टेज. इट वाज वेरी लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें दिमाग में एक साथ ट्राई कर रहे थे उन लोग देने का, एंड वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. एंड पर्सनली मेरा ऐसा कि अगर मुझे कुछ चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती, बिकॉज वेन एवर आई ट्राई टू लर्न समथिंग, आई गिव एवरीथिंग इनटू इट. पर फिर भी अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, देन समहाउ आई डाउट माई सेल्फ कि अगर मैं शायद कहीं पे तो कम पढ़ रहा हूँ. सो दैट वाज द पार्ट. एंड एक्चुअली इट वाज बिकॉज अगर हम किसी पर्टिकुलर आईटी रोल में जा रहे हैं, so just learning a particular tool, I think it's not enough. There are some other things as well which we should be aware of. So that's the very first thing. एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि मैं भी वो कर सकता हूँ जो बाकी के सारे कलीग्स कर रहे हैं, पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था उस पर वर्क करने का, बिकॉज देयर वाज सो मच थिंग्स ऑन गोइंग, एंड उसके साथ मुझे कुछ सीखना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. लाइक देयर इज टू अराउंड 5 hours ऑफ ट्रैवलिंग along with my job, and it was very hard to handle at that point. Makes me feel like मुझे और पढ़ना है और सीखना है और खुद को ज्यादा इस चीज में रेंडर करना है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम देके. So right now, as a data analyst, which tools or softwares you are using in day-to-day life? So primarily it's Excel and Power BI, both. And for database management, it's SQL, SQL. And these are the three primary tools. And along with that, there are some supporting, like CRM is there, ERP systems is there, like the end cloud is there. So that kind of things there. But primarily I'm working on
Power BI, SQL, and Excel. So three tools: Power BI, SQL, and Excel. Like let's suppose you are having 100% of time, so your major chunk of time, दिन का ज्यादातर हिस्सा आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, किसको दे रहे हो? It's actually Power BI. जैसे कि मुझे data cleaning as a data analyst, majority of our time is into data cleaning only, to gather data sources and to clean it so that we'll analyze it later. So that particular thing, वो जो data cleaning का part है, वो ज्यादातर मेरा Power BI के अंदर there is something called as Power Query, which is used for data, which is meant for data cleaning. So Power Query, so indirectly Power BI में मेरा time बहुत ज्यादा है. Now, a lot of people have this question, Weber. Let's suppose languages like SAS, R, or Python, these are known for data analysis, or some of them are for data science, data engineering, all those short. Or Power BI and Tableau, these are known for visualization. But आप data analysis role पे काम कर रहे हैं, and you even said कि मैं data cleaning भी Power BI में कर रहा हूँ. People traditionally think कि data analysis होता है SAS और Python पे, and visualization होता है Power BI and Tableau पे. That is the major, information that is available. But आप बता रहे हो you are doing that in Power BI. So how it is like? तो ये क्या रोल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बिजनेस एनालिस्ट जैसा? What is that? Yeah, I'll explain. So basically, see, there are particular tools meant to do particular things. Like data cleaning, ज्यादातर जो किया जाता है, it's mostly on Power Query part. And there is Python as well. There are alternatives. I'm not denying it. You can do the same thing in Excel as well. But the part comes in like which particular tool handles your data well. Because in your organization, when you're working, of course, आप millions of data पे work करोगे. So Python can handle it very well, and Power BI can handle it very well. But Excel somehow it lacks in that particular area. As you mentioned that data analyst लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ इस visualization के लिए बनाया गया है. So I'll correct you guys. It's not exactly like that. Power BI or even Tableau, it's not only meant for business and visualizations. There are a lot of other things which we can do it as well. तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा प्रिपेयर होने में इन तीन चीजों पे रेडी होने के लिए? And the work you are doing, the domain knowledge as well, little bit of. In order to get job ready, I think 4 to 8 months is mandatory. Okay, 4 महीने में आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि एक्चुअल काम होता क्या है, और 8 मंथ तक आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली काम कैसे होगा. Okay, being a data analyst. Coming for the tools part, I will say like Excel is the only one which will take some less amount of time. Like within a month or so you can learn. There is a myth that a lot of people say that Power BI is a drag and drop tool. So like within a month or you will able to, learn it within 15 days. But trust me guys, it's not like that. Power BI will, अगर आपको properly सीखना है, तो Power BI will definitely take you around 3 to 4 months. And same goes to SQL as well. Because SQL is something which you need to practice a lot. Because you need to deal with database and you need to query. So ये सारे चीजों के लिए आपको practice की बहुत जरूरत है. So I think around 8 months you can consider, including the domain knowledge as well. See, once you will learn all these tools, then in order to showcase कि आपको tool आता है, आप projects करो. Projects के during ही आप domain knowledge भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत gain कर लोगे, right? Because your project will be domain oriented. If you are targeting to insurance, if you are targeting to sales, so according to that, your domain knowledge will little bit get into. Like one thing, जब आपने कभी SAS की ट्रेनिंग ली थी, right, long back 3.5 years or what's on, तब I think you got prepared for one role that was SAS plus and little bit of clinical, right? Clinical SAS, but the portion of domain was very less. But if we see now, Weber, कि पहले we started with training of SAS and little bit of domain, फिर हमने SAS के साथ project डीप में चले गए, राइट? नाउ वी सी कि फिर हमने आर ऐड किया, देन वी हैव एडेड पाइथन एज वेल. सो अब क्या हो रहा है इस रोल पे भी, लाइक पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लिनिकल सैस रोल, अब वो भी इवॉल्व हो गया. वन कैन नॉट गो इनटू दैट रोल विद द नॉलेज ऑफ सैस ओनली. वन कैन गो, बट द प्रोबेबिलिटी इज हाई पीपल विद द नॉलेज ऑफ सैस एंड आर, दे विल गेट सेलेक्टेड कंपेयर टू द पीपल ओनली विद द सैस नॉलेज. तो आई थिंक यहाँ पे क्लिनिकल इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस को लेके इवोल्यूशन बहुत स्लो आया, बीट एनी रीजन, बट इट वॉज वेरी फास्ट इन बैंकिंग. इसके लिए बैंकिंग में क्या हुआ, व्हाट आई फील, कि वहां पे सैस अकेला टिक नहीं पाया, बिकॉज वो इवॉल्व हो गया फास्ट. बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत फास्ट इवॉल्व हो गया. In clinical, it was slow. I feel this is a benefit. Like if someone, so what we have done now, कि हमने SAS के साथ R को भी ऐड किया, Python को भी ऐड किया. What we say कि SAS and clinical जो प्रोजेक्ट है वो तो मैंडेटरी है, बट SAS, clinical and R करते हो, it is good to have. बिकॉज ये एग्जैक्टली स्किल सेट है जो कंपनी इस रोल पे देख रही है. बट इफ यू वांट टू फुल्ली प्रिपेयर, इफ यू डोंट वांट टू टारगेट ओनली वन रोल, सिर्फ क्लिनिकल इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करना है, तो गो फॉर आवर clinical SAS plus data science course. So what we have done, SAS, R,
Python, SQL, Power BI, Mhm. and domain knowledge project. So if a person prepares for this, now he is eligible for statistical programmer role. That is what clinical science is known. Data analysis, business analyst, some part of data engineering, and some part of data science as well. क्योंकि data science में AI ML थोड़ा deep में जाना पड़ता है. So there is a big confusion कि data analysis में कोई SAS भी सीख रहा है, कोई मतलब SAS नहीं, R Python भी सीख रहा है, and different thing. So if someone want to exactly prepare for the role you are working, so as you shared the this much time it gonna take, but what should be the process for it? उसको किस चीज से start करना चाहिए? The learning, roadmap. Yeah. Suppose if I want to start right from the beginning, so how I will start? So मैं सबसे पहले start करूंगा from the Excel. Excel को लोग I am not sure कि how much they emphasize on that tool, but Excel is still the mother of business intelligence. आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, Excel का यूज होता ही होता है, और जितना हम सोचते हैं उससे थोड़ा बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, बिकॉज इट इज वेरी बेस्ट फॉर क्विक एनालिसिस. कुछ भी छोटा बहुत एनालिसिस करना हो, कीवर्ड, वी लुकअप, इट इज वेरी वेरी वर्सेटाइल इन. So I will start with the Excel, and I won't learn only जो ज्यादा famous हो गया है वही particular चीज में सीख लो. It shouldn't be like that. Okay, we should give dedicated 1 month just on Excel. I will say we'll create some small little bit of reports or some decent dashboard we can create, because in interview as well they do ask how you have worked on Excel, what kind of projects you have made, or how will you handle the data cleaning Excel. Then I will quickly move to SQL, because I think SQL is a very very it's a best tool currently for database management. It's been in the industry from a very very long time. Database को manage करने के लिए SQL से best language कुछ है ही नहीं, तो SQL I will start learning. अगर आप कोई भी data analyst या data engineering role को target कर रहे हो in any of the interview, 60%, 50 to 60% इंटरव्यू विल बी बेस्ड एंटायरली ऑन एसक्यूएल के क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा पूछेंगे वो. दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आई विल मूव ऑन टू पावर बीआई. सो व्हाई पावर बीआई लास्ट? बिकॉज पावर बीआई में बहुत से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है चीज डिराइव फ्रॉम एसक्यूएल एक्चुअली. लाइक for example, that is something called as joins. Okay, inner join, left join, which is also in there in SAS as well, right? Also, there is called as merging, appending, which is similar to union all. Okay, that kind of. So, which is why I will learn SQL, and after that I will learn Power. So, I think that should be an ideal roadmap for if you're preparing for data analysis. Now, one more question, Vaibhav, ki why do most of the people fail after even learning all those skills, all these tools? So, see, a learning tool is a different thing, and executing them is a different thing, right? So once you have learned, it's a hard strike, guys. Like only doing the course won't help you get the job. Okay, execution will. What do I mean basically by execution? It means that you have to show your online credibility. You have to continuously, rigorously keep on working your projects. Okay, because as a fresher, of course, interviewer knows आपके पास डोमेन नॉलेज या फिर वर्क एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा. सो मेजरली देयर क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स ओनली. ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स पे बेसिस पे आपको कुछ पूछेंगे कि क्या किया प्रोजेक्ट में, कैसे किया, क्यों किया, कहाँ से डेटा लिया. लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क. तो ऑफ कोर्स आपको प्रोजेक्ट्स करते रहना चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स करते रहना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि लाइक 10 प्रोजेक्ट कर लो. ऑफ कोर्स 2-3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10 वीक ones. Okay, so do some good solid projects. Rejection, guys, is a part of job process. So if I said like 8 months आपका preparation time जाएगा, so initially 2-3 months will be learning, 2 to 3 months will be like applying interviews, and then again there is a phase called as interview plus rejections. Okay, rejection is a part of job process. वो तो होगा ही होगा. So मैंने देखा है, including me as well, जब मैं initial stage पे था, even I faced rejections, right? So रिजेक्ट होने के बाद हम काफी मायूस हो जाते हैं. ऐसा लगता है कि होगा ही नहीं मेरे से, मैं छोड़ देता हूँ. 8-9 महीने मैंने डाल दिया, मेरा एज भी बढ़ते जा रहा है. आई थिंक दिस इज नॉट आइडल फॉर मी, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. इट इज नॉट लाइक दैट, गाइस. सी, अगर आप चीज को समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, इट मीन्स वो हार्ड नहीं है. ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा है, आप कर रहे हो, मतलब वो इजी, आप कर सकते हो. आपको बस उस पर डटे रहना है और ज्यादा से ज्यादा खुद के ऊपर वर्क करते रहना है डे बाय डे. इफ यू कीप ऑन वर्किंग, if you learn aggressively, definitely there will be a point जहां पर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और इंटरव्यू में भले आप रिजेक्शन में से आ जाए, आपको अपने वो कॉन्फिडेंट होगा कि यस, नेक्स्ट उसका अगला इंटरव्यू में डेफिनेटली क्रैक कर पाऊंगा. सो आई थिंक आपको डटे रहना चाहिए और खुद पे बिलीव रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक हाथ दो रिजेक्शन आ गए तो फिर लाइक लेट गो करना चाहिए. So that's the important thing. Okay, can you share some tips, Vaibhav, or for getting interview as a data analyst? Primarily it's projects based. Okay, projects बहुत अच्छे होने चाहिए. It should be a solid portfolio projects.
स्टूडेंट भी लाइक पिज्जा सेल्स, ये सब मैंने देखा है कि आजकल ज्यादा आ रहा है। लिंक्डइन लिंक्डइन पे मैं देख रहा हूँ, कोई पिज्जा पे बना रहा है, कोई आईपीएल पे बना रहा है। स्टूडेंट भी लाइक दैट। कंपनी ज्यादा फोकस करती है सेल्स पे, मार्केटिंग पे, उनके फाइनेंस पे, राइट, सप्लाई चेन। सो ट्राई टू फोकस ऑन दिस डोमेन, राइट, उस पे प्रोजेक्ट बनाना ट्राई। सो प्रोजेक्ट्स प्राइमरी। सेकंड, एज आई सेड अर्लियर, ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी। जो भी आप काम कर रहे हो उसको शोकेस करो, क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, शोकेस इट टू अनदर, ट्राई टू इंक्रीज योर नेटवर्क मोर एंड मोर। एंड थर्ड, आई विल से, जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, उस पे जितना हो सके उतना एक्टिव रहना सीख, ठीक है, अपडेट करो। और अपने लाइक जैसे भी आपके लाइक कुछ ओपनिंग आ गया, तो ओपनिंग के हिसाब से आपको अपने रेज्यूम को भी थोड़ा बहुत रेंडर करना होगा, राइट। जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, दैट वर्ड शुड बी देयर इन योर रेज्यूम। वही एक रीजन है जिससे एचआर को कुछ समझ में आएगा और वो आपको कॉल करेगा, ओके। क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग एक ही रेज्यूम बनाते हैं और वही हर जगह पे डाल देते हैं, बट आई थिंक दैट्स नॉट आइडियल, बिकॉज हर एक जॉब ओपनिंग अलग डिमांड करती है। एक डिफरेंस बता हुआ है वो कि जब आप सीखते हो तो कहीं कहीं आप प्रोजेक्ट वर्क अच्छे से करते हो तो आपको अच्छा फील होता है कि दिस इज लाइक द रियल वर्क। बट आप जब हम्म। रियल टाइम में काम करते हो, व्हाट इज द डिफरेंस यू फाइंड कि जब हम सीख रहे होते हैं और प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और जब हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं? Yeah, actually, there's a lot of difference in it, which I feel, because कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, हम चाहे अगर डेडिकेटली करें तो 10 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, या उससे भी कम। बट जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्चुअली लर्न। ज्यादातर हमारा टाइम जाता है टू क्लीन द मेसी डेटा एंड टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ऐसे कह सकते हो कि आपके जो मैनेजर्स है, उनको टेक्निकल उतना पता नहीं होता, राइट। सो हमें उनका जो टेक्निकल टर्म्स वहाँ पे ना के बराबर यूज करना होता है, उनके लैंग्वेज में बात करना होता है। बट कुछ कुछ चीजें होती है वो डायरेक्टली अच्छे से कन्वे नहीं हो पाती, तो देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। क्योंकि हम सोचते कुछ अच्छा ऐसा है, फिर बाद में रिजल्ट निकालने के बाद करते हैं अच्छा ऐसा नहीं वैसा था, तो फिर वो मेहनत जो हम करते हैं वो उतना फिर से अंडू करना पड़ता है। एक्चुअल प्रोजेक्ट में देर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन, एंड इट्स नॉट लाइक कि एक अकेला बंदा कोई करता है। देर इज अ टीम, dedicated team which work entirely on that project. After completing the project, it's like a milestone कि कुछ मतलब बहुत अच्छे से सक्सेसफुली करके हमने कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट। जो हम अपने कितने भी प्रोजेक्ट्स कर लो उससे फील नहीं आएगा जो हम एक्चुअल प्रोजेक्ट जब जिस पे काम करते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। What do you think how AI gonna impact the role on which you are working? Do you think like it can impact? If yes, then how? If no, then I think AI won't completely impact the data analyst role, but it will impact the analyst who is working on the basics only, right? What I mean the basics, अगर कोई data cleaning ही कर रहा है या फिर कुछ short SQL queries ही लिख रहा है, so guys, that thing is now being getting automated by an AI. What AI won't do is basically business thinking, the problem statement, how to influence the stakeholders' decision making, this communication. AI, I don't think will able to replace, but AI can, definitely impact your job if you don't utilize it in your daily job. आपको AI डेटा एनालिस्ट के साथ कैसे मर्ज होता है, कैसे आज के टाइम पे कैसे यूज हो रहा है, आपको अपडेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक एआई कुछ नहीं कर सकता, मेरा जॉब सेफ है, बाकी का जॉब जा रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको एआई कैसे यूटिलाइज करना है, आई थिंक दैट शुड बी इम्पोर्टेंट, आपको सीखना चाहिए। बट एआई ऑफ कोर्स अप टू सम एक्सटेंट इट विल इम्पैक्ट, बट नॉट एंटायरली, आई थिंक। तो अगर आज आपको जर्नी स्टार्ट करनी हो एज एन डेटा एनालिस्ट तो व्हाट गोना डू डिफरेंटली? So, differently, I will say that, as I said, like online credibility, which in my time, मैं इतना नहीं करता था, to be very honest. I was little bit shy कि अगर मैंने कुछ सीखा हो और मैंने कुछ डाला तो किसी को क्या लगेगा, अगर वो गलत हो गया पोस्ट, तो कुछ ग्रामर मिस्टेक्स हो गया तो कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, but and all like that. Yeah, I don't think we should think about all those things, because there are very decent people. They'll always encourage to, because they also know since we are a fresher, beginner, हम चीजें कुछ सीख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे एनकरेज होंगे। क्योंकि मैं वैसे सोचता था, सो आई थिंक दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक। क्योंकि अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं, वी ऑलवेज नीड टू शेयर इट, ओके। शेयरिंग विल ऑलवेज इंक्रीज द नॉलेज, सो ऑलवेज डू दैट। मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ बिगनर, हम क्या मतलब मैं क्या करता था कि कुछ भी टूल अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो आई वाज लाइक मैं उसको मास्टर ही करूंगा पूरा एंड तक, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर टूल सीखने के लिए बहुत सालों की मेहनत होती है। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 महीने में कर लिया। ऑफ कोर्स यू विल नो, get to know better about, but mastering is something which you need to spend a lot of years on it, okay? At that time you will understand. अगर आप किसी भी टूल को हाथ लगा रहे हो, try to get up to like 70%, 65 to 75% आप उसको सीख लो अच्छे से, so that अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, you're good to go,
कि आप आंसर कर पाओ, इंटरव्यू रेडी तक आप कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम डाल देते हैं उसके ऊपर। सो देर आर अदर एरियाज जो मैंने टच भी नहीं किए थे मेरे टाइम। तो आई थॉट कि अगर मुझे करना हो तो मैं, अगर मेरे को सैट्स पढ़ रहा हूँ, आई विल लर्न सैट्स फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, I'll cover it, and I will try to focus more on something which will help me get the job faster. So what can be the salary for as an data analyst, the role you are working, the person who is having approx 2 or 3 years of experience? What salary one can assume? See, for fresher, I think at somewhere in the range of 3 to 6, I will say. And for experience, for 2 to 3 years of experience, they can expect somewhere around 6 to 12 LP. Because I'm talking about the job market is specifically for Mumbai. I'm not sure about other like cities, but Mumbai, I think 6 to 12 LPA they do pay, or even more than that actually. Okay. What do you think, like, if as a data analyst, if someone wants to increase their salary in a faster way, what they can do? First AI, then cloud, any cloud tool. But I suggest go for Microsoft Azure, because there is Amazon AWS, Google is there. Or the data analyst, Power BI is from Microsoft. So, and Azure is also by Microsoft product only. So I'll suggest go for cloud, which is Microsoft Azure, and try to explore little bit of data engineering concepts as well. Okay, because see, eventually, the hierarchy you need to understand that there is first, whenever as a data analyst, we work on the clean data. So that clean data, all this clean data is prepared from the data engineers. Okay, so data engineers पे बहुत मेहनत करते हैं, पाइपलाइंस लिखी जाती है, उसको डेटा को डेटा वेयर हाउस में डाला जाता है, और बहुत कुछ प्रोसेस होती है जो डेटा इंजीनियर वर्क करता है उसके ऊपर, एंड देन वी वर्क ऑन दैट क्लीन डेटा, राइट। तो आई थिंक एज अ डेटा एनालिस्ट हमें उसका प्री प्रोसेस पे थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, विच इज द डेटा इंजीनियरिंग पार्ट। सो डेटा इंजीनियरिंग वी शुड लर्न, एआई एंड क्लाउड इज देयर। सो आई थिंक दैट इज more than enough to get a upper hand from others. And how one should prepare for interviews? So first of all, if you are learning SQL, Power BI, Excel, ये हर एक टूल में अभी ऐसा हो गया है कि कुछ क्वेश्चन है जो पूछेंगे ही पूछेंगे, एंड वी ऑल नो दैट कि ये सारा टॉपिक आता ही है। तो बट स्टिल पीपल फेल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। आई सीन like I myself was interviewing for one of the position as an intern only, and I asked a very simple question, but she wasn't able to answer it. And she made project on that particular thing. So I was expecting her to answer that, but she wasn't able to. So that's the thing, because ज्यादातर लोग लिखते हैं बट उसके ऊपर प्रिपेयर नहीं करते। सो क्योंकि इंटरव्यूअर भी ज्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बीइंग अ फ्रेशर दे नो, उनके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। सो आई विल सजेस्ट कि आप ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन पे फोकस करो। Okay, like how is the journey for non-tech student, like who is not having any tech experience, software वगैरह ना आता? And the second thing is related to this कि is it possible? People say कि पहले मार्केट अच्छा था, अब ज्यादा competitive हो गया है. Like, is it possible still people who don't have any tech knowledge, they can still get into tech? 100%, 100%. Sure. I think even a non-IT background student or a commerce student can definitely enter into this role. Because see, this role is not about tools. It is more about problem solving, okay, business thinking and communication. It is more about that. So अगर आपके ये तीन skills है, तो not only in this role, in any of the role you will able to survive. Because tools will of course keep on changing and changing. अभी Power BI है, कल जाके कुछ और हो. Of course आप 100% job ले सकते हो. As I said, like business thinking, problem solving and communication is the key point. And tools are something which will help you get enter into that role, right? So, but primarily these three things are very important, right? सीखने के लिए of course initial 6 to 8 months आपको लगेंगे ही, including the job search and all those things. But I will suggest अगर कोई non IT background से है and if they are working in some another domain, so I will suggest कि आपका पहले domain का जो भी knowledge हो, try to relate it with your data analyst role. Okay, even your projects as well, because अगर आप 5 to 6 years किसी अलग डोमेन में काम कर रहे हो, सो ऑफकोर्स यू आर हैविंग अ डिसेंट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आप वो आपके प्रोजेक्ट्स में और डेटा एनालिस्ट रोल में ऑफकोर्स इंक्लूड करने का ट्राई करो इससे, सो दैट सामने इंटरव्यू को इट गिव्स एन इंप्रेशन की राइट, या कि he has tried to relate this thing with data analysis, and he has tried to remove some insightful things from this. So that's matter. And for fresher, as I said, like projects is the only thing. Because see, guys, job के लिए experience matter, but learning is something which gives you growth. Okay, jobs gives you experience of course, but learning gives you growth, and growth, in my point of view, is way more important, right? It matters a lot. Of course, experience does, but
ग्रोथ इज समथिंग मैटर्स अ लॉट डाउन द लाइन। आपको ग्रोथ ही है आपके स्किल्स है जो आपको और ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बट दे आर स्टक at some point only. But on the other hand, there are like fire and some learning people or like जो बहुत freshers है जो 3-4 years में उनसे ज्यादा पैकेज भी ले जाते हैं. It's because of their skills, guys. It's because they keep on learning new things. As a fresher, you need to keep on learning new things and try to build a solid project. So, Vaibhav, now you have to give some general guidance or suggestions to especially freshers जिनके पास experience है, they are moving little bit of smoothly or some experience they are having. So what suggestion you're going to give to freshers, those who want to make their career into tech or start their career? You want to start your career, you have to mentally prepare yourself कि मुझे ये specific time इस चीज में देना ही देना है and I have to do it anyhow. Of course, there will be a lot of challenges. There are a lot of things which you won't be able to understand at the beginning, but you need to keep on trying. Or as a fresher, I'm again saying, build your project. Project is the only thing which will help you get the job. Nothing else will get the job. आप certifications भी कर लोगे, but अगर certification करने के बाद अगर आप knowledge ही नहीं है वो चीज explain करने का, then it nothing matters. ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं हो चीज का. आई विल से जस्ट कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग एंड ट्राई टू बिल्ड न्यू प्रोजेक्ट्स एज अ फ्रेशर बिकॉज अपार्ट फ्रॉम देयर इज नथिंग. कुछ ऐसा मैजिक नहीं है कि आप ऐसा कुछ करोगे तो ऐसा हो जाएगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ट्राई टू इंक्रीज योर नेटवर्क, शोकेस योर वर्क, बिल्ड दैट ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी, बिल्ड योर पोर्टफोलियो. ओके, there are a lot of ways to build your portfolio, guys. कहीं पर भी सीखना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, YouTube is there, ChatGPT is there. This is meant to help. So try to utilize this to get to job. And yeah, I think that's it, sir. Office politics and pressure, like no matter like whether the company is good or bad, a person in their journey of career एक बार अच्छे से जाता है इसके अंदर, रिफाइन होता है इस मशीन में, राइट? सो Definitely. like do you got the opportunity to go through that machine? If yes, what do you learn from it? How did you handle this situation? Because this is something unknown from the tech thing, जितनी भी चीजें डिस्कस होती है इंटरनेट पे, एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग. आई फील पर्सनली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन लोग ये इंडस्ट्री छोड़ देते कभी कभार, कोई भी इंडस्ट्री, once they face this. It's a great question. I like to answer this. See, as a fresher, I'll share my so since I was new to company and see freshers क्या होते हैं, बहुत full of excitement होते हैं. मैं ये करूंगा वो करूंगी, यहाँ पर सबको मैं बहुत अच्छा इंप्रेशन दे दूंगी. It's not like that, guys. See, आप जितना कम बोलो उतना बेटर होता है. ठीक है, because you're the fresher. They know कि आपको कुछ आता नहीं है. You are just a learning curve. So I will suggest कि ज्यादा भी over friendly ना हो आपके मैनेजर से. Even if they try to make you feel comfort and all those things, but you need to maintain a certain point. Yeah, यहाँ तक मैं comfortable हूँ, उसके ज्यादा मुझे over comfortable नहीं होना. So that's the main thing. And I will say कि office friendship is something it will help you a lot. बट यू शुड कीप इट टूवर्ड्स लाइक ऑफिस तक ही उसको सीमित रखो, उसको ज्यादा एक्सटेंड ना करो. बिकॉज ठीक है, हम ज्यादा क्लोज हो जाते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग टुगेदर, राइट? हम फैमिली से ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं. सो ऑफकोर्स ह्यूमन टेंडेंसी हम थोड़ा बहुत ज्यादा, बट ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी से, राइट? ज्यादा कुछ ओवर शेयर नहीं करना है. हमारा काम है कि उनसे सीखना, ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस होना नहीं. तो ज्यादा सीखो और आपके आइडिया शेयर करो. वो जो बता रहे वो सुनो, बिकॉज सीनियर देन यू, तो उनको कुछ चीजें ज्यादा पता होती है हमसे. हमें इनिशियली लगता है कि नहीं ये कुछ भी बोल रहा है, इसको पता नहीं, हमें ज्यादा पता है. मैंने अभी देखा ऐसा होता है. वो भी वो फेज से गए हुए रहते हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें पता होता है. एंड क्या होता है, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो आपके साथ हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि हो गया, कि वो आपके सामने नहीं होता, वो आपके पीछे होता है, राइट? आपको फिर किसी और से सुनाने का ऐसा कुछ हुआ वैसा कुछ हुआ, फिर आपके मेंटल हेल्थ को फिर डिस्टर्ब करेगा, राइट? सो ये सब ट्रैप में आपको पढ़ना ही नहीं है. सो द बेस्ट थिंग है अपने काम से काम रखो, ज्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होना है इससे. ऑफकोर्स फ्रेंडली एनवायरमेंट वो सब तो होगा ही. जॉब करे तो ऑफकोर्स ओवर इन्वॉल्व नहीं होना है इससे. मार्जिन मेंटेन रखना है और काम से काम रखो, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो हर 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 एक्सपेक्ट में, नॉट ओनली इन फ्रेंडशिप बट इन every extra trying to share something with someone, and if it's not able to वो चाहता ही नहीं कि वो कुछ implement करे, then just leave it. ऑफिस में आपके काम से ज्यादा आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे बातें करते हो, वो भी बहुत अफेक्ट करता है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे. मतलब कुछ साल पहले तक तो मैं बिलीव करता था एंड वैभव की काम करो और काम बोलता है, एंड दैट इज ट्रू, राइट? एट द एंड क्लाइंट हो या क्लाइंट से भी जो भी हो, राइट? आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, जो भी हो, सब काम से चलती है, राइट? बट आई फील कि लास्ट ईयर कुछ मैंने एक्सपीरियंसेस किए, बिकॉज मुझे मौका मिला दूसरे नजरिए से देखने का एज एन एम्प्लॉयर, कि मैंने उनको कुछ काम दिए तो मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो गया उस चीज को लेके. नाउ आई फील कि काम करने के साथ
if you maintain a good aura, good environment, good communication, that matters a lot guys. क्योंकि ये कोई भी काम आप करते हो ना तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होता है, वो एग्जिस्ट करता है डिफॉल्ट। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय कुछ ऐसी चीजें और गलती से भी कर देता है और शायद उसे लगता होगा कि ये नॉर्मल है मेरा बोलना ऐसा या बिहेवियर ऐसा, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ऊपर लेवल पे, बिकॉज ऑलरेडी वो बॉम्बार्डेड होते हैं चीजें से। टू बी फ्रैंक, मतलब अपर लेवल पे जो चीजें चल रही होती हैं तो हर किसी को उनसे उम्मीदें होती हैं, क्लाइंट को भी, सबको भी, और टीम को भी हैंडल करना होता है। प्लीज मेंटेन योर गुड कम्युनिकेशन, लर्न हाउ टू कम्युनिकेट वेल, हाउ टू मेंटेन गुड एनवायरनमेंट एंड हाउ टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप। नॉट रिलेशनशिप, एक लिमिट में जाके कैसे मेंटेन करो, बहुत मैटर करता है ये। आप कैसे बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। एक सेम चीज को दो सेम लेवल के व्यक्ति जो सेम लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक से मैनेजर बहुत खुश रह सकते हैं, एक से एक दुखी रह सकते हैं। दुखी तो नहीं रहेंगे, वो उनको ही टारगेट कर लेंगे ऐसा हो सकता है। इट मैटर्स कि आपका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, राइट। टू बी फ्रैंक, व्हेन आई वर्क विद सम पीपल, पहला भी अच्छा था, दूसरा भी अच्छा था, बट दूसरा कोई भी क्या होता था, कोई भी चीज को थोड़ा रूड वे में स्ट्रेच करता था। अगर आपने जर्नी सस्टेन कर ली, सर्वाइव कर लिया, तो यू विल गो टू द अदर एंड ऑफ टेबल फॉर श्योर। सो देन यू विल गेट टू नो कि भाई इट इज नॉट अबाउट वन वे थिंकिंग, आपको उधर भी सोचना पड़ता है। नथिंग इज गुड एट बैड, जस्ट मेंटेन योर कम्युनिकेशन इन अ गुड वे। अच्छे से कम्युनिकेट करो, रूड नहीं होना चाहिए कभी कम्युनिकेशन। एंड बिकॉज हमें लगता है कि वो मैंने बोल दिया, इट वेंट इन अ रॉन्ग वे, ऐसा हो जाता है। काम अच्छे से करो, बिकॉज एट द एंड काम ही बोलने वाला है। कम्युनिकेशन भी लॉन्ग टाइम तक शायद ना काम करे, बट काम के साथ अगर अच्छा कम्युनिकेशन हुआ, दैट इज लाइक गोल्ड। लाइक बी इट एनीवेयर, राइट। आइदर यू आर डूइंग समथिंग बाय योर ओन, आइदर यू आर इन द इंडस्ट्री। आपका काम बोलेगा और आपका कम्युनिकेशन। बिकॉज अगर आप, लेट्स सपोज मेरा काम बहुत अच्छा है, कोई मेरे पास एडमिशन के लिए आया, अरे भाई लेना है तो ले, नहीं तो जाना यार। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो ही वाज लाइक चूज समवन एल्स, भले इससे कम हो लेकिन इसका एटीट्यूड कैसा खराब है, ही विल टेल मी, राइट। सेम गोज एवरीवेयर। या दिस इज व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम अदर एंड, एंड आई फील कि अब चीजें इवॉल्व हो गई हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, क्लिनिकल या कोई भी। अब एक टूल से काम नहीं चल रहा कहीं से भी, तो आप SAS, R या पाइथन जहाँ पे भी हो, तो कुछ विजुअलाइजेशन के टूल और कुछ एनालिसिस के टूल सीख ही लेना, माइंड में रख ही लो। नाउ नॉट, इट्स नॉट एनी मोर अ सिंगल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री। अब सभी इंडस्ट्री आपसे अज्यूम कर रहे हैं, आपको सर्टन सेट ऑफ टूल्स आने चाहिए। तो एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिस भी रोल पे जाना है जाके जेडी देखो। टू गो एज एन फ्रेशर, तो मैक्स फ्रेशर और 1 year एक्सपीरियंस लेवल की जेडी देखो, you'll get the best clarity. And if someone who is working on your role, if you can take a counseling session from them, तो that can be a good thing. ठीक है, वो एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है। So मिलते हैं वैभव, थैंक यू सो मच, मिलता है, बाय बाय गाइस। Thank you, sir. Thank you. Bye, guys. Yeah, thank you.